اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک اور جمعہ کا دن جو ہے عطا فرمایا، اور عطا فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کیا کرا، رمضان کے مہینے کا جمعہ کا دن اور ایک بار عطا فرمایا ہے کہ پچھلے جمعہ میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو آج کے جمعہ میں موجود نہیں، تو اپن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو جمعہ کی جو ہے اور ایک دن جو ہے منانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعہ میں ہم نے جو ہے رمضان کے بارے میں بات کرنی چالو کی تھی، تو کچھ باتیں رہ گئی تھی پچھلے جمعہ میں بولنے کے لیے، تو ابھی ہم آگے انہی باتوں کو کنٹینیو کریں گے۔ تو پہلی بات کیا تھی کہ رمضان میں زیادہ ثواب کیسے کمائیں۔ پچھلی جمعہ میں تھوڑے باتیں بولے لیکن وقت کا تقاضا رہنے کی وجہ سے پوری بات نہیں کر سکا میں، تو آج اپن کریں گے۔ تو میں پچھلے جمعہ میں کیا بولا تھا، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتے اتنا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، ہے کہ نہیں، نفل پڑھو، سنت پڑھو، جیسا بھی نانا بولے نفل پڑھتے جاؤ، سنت پڑھتے جاؤ، کیونکہ نفل اور سنت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ فرض نماز کے برابر ملنے والا ہے، اور اگر تمہیں فرض نماز پڑھیں گے تو 70 فرض نماز پڑھنے کا کیا ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ تمہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ تمہارا ثواب ملنے والا ہے، اگر تمہیں نہیں پڑھیں گے تو تمہارا ثواب نہیں ملنے والا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا بولا تھا میں کہ مسجد میں آتے ہو کیا کرو، اعتکاف کی نیت کرو، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف۔ مطلب اپن کیا کرتے، بیانہ چالو رہتے، نفل نماز پڑھتے رہتے، سنت نماز پڑھتے رہتے، ہے کہ نہیں، جمعہ کا دن رہتا، یا پھر اپن کیا کرتے رات کو تراویح کے وقت ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے مسجد میں رہتے، تو کیا کرنے کا اپن اندر آنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرے تو 2 گھنٹے اعتکاف کرنے کا ثواب ملا نا، تو اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اعتکاف کی نیت کرو مسجد میں آنے کا۔ اب تمہارا کیا رہتا ہے، میٹر چالو رہتا ہے، تم بیٹھے رہو، سو کرو، کیا بھی کرو مسجد میں، تمہارا کیا رہتا ہے، میٹر چالو رہتا ہے ثواب کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنے کا، قرآن شریف پڑھنے کی کثرت کرنے کا، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن شریف پورا مکمل ہوا تھا بولتے رمضان کے مہینے میں، پوری طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو قرآن شریف ختم ہوا تھا بولتے اتر کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اور یہ بھی آتا حدیث پاک کے اندر کہ شب قدر کی رات کے اندر جو ہے ہر سال جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کے زمانے میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ سال بھر میں کتنا قرآن شریف ختم ہوا، کتنے آیتیں اتری، وہ پورا ہر ایک بار پڑھ کو سناتے تھے بولتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی پہلے حکم سے لے کو اس رمضان کے شب قدر تک جتنا بھی قرآن شریف اترے ہوتا پورا ان کو پڑھ کو سناتے تھے بولتے۔ تو رمضان مہینے کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکتے اتنا قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جو بھاشے میں آتے وہ بھاشے میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، کنڑ میں پڑھو، تیلگو میں پڑھو، تم جو بھاشا آتی وہ بھاشے میں قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور آج جو ہے ہر بھاشے کا قرآن شریف موجود ہے، اپنے مسجد میں بھی ہے، تمہارا گوگل پر بھی مل سکتے ہیں، ہر بھاشے کے جو قرآن شریف موجود ہے، تو جو بھاشے میں آتے وہ بھاشے میں پڑھو، تمہارا جو بھاشے میں سمجھتے، کیونکہ قرآن شریف جو ہے سمجھ کو پڑھنے کی چیز ہے نا، تمہارا جتنا تمہیں سمجھ کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ نہیں۔ تو جتنا جو بھاشے میں تمہیں اچھا لگتا ہے وہ بھاشے میں پڑھو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف پورا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کے جو 4 سورے ہیں وہ کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ بار ہو سکتے اتنا زیادہ بار کل کے سورے پڑھو، ہاں، کیونکہ 3 بار کل واللہ کا سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملنے والا ہے، اور رمضان میں ایک کا 70 دے رہا اللہ، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ، یہ بھی کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اپنا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی جو ہے زیادہ بار پڑھنے کی کوشش کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو۔ ہاں، راتوں کو جاگو، جب تمہیں سحری کو اٹھتے تب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت رہتا تو تہجد کی نماز پڑھو، 2 رکعت کی ہوتی نہیں، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑا دیر بیٹھ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 تسبیح پڑھو۔ ہاں، پھر اس کے بعد عشراق کی نماز پڑھو، کیا 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کیا 5:30 پونے 6 بجے تک ختم ہوتی، 6:45 کو جو عشراق کا وقت ہے، عشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے تو ایک مکمل حج اور ایک مکمل کیا بولتے اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ تمہیں اگر ایک بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 حج اور 70 عمرے کا بھی ثواب دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اسے کون روکنے والا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا ثواب کمانے کی کوشش کرو۔ ہاں، پھر اس کے بعد 9:30 بجے چاشت کی نماز رہتی، 12 رکعت اگر چاشت کی نماز پڑھیں گے تو ایک اللہ تعالیٰ کیا بولے، ایک محل تم نہ میں جنت کے اندر بند کو دیتا۔
तो 12 रकात तुम्हें पड़ेगा, एक की जगह 70 भी मिल सकता, 700 भी मिल सकता, 7 लाख भी महल मिल सकते। और वो महल ऐसे दुनिया के ईटा के पत्थर के नहीं, एक ईट सुन्नी के रहेंगे तो एक ईट चांदी के रहेंगे, एक एक महल में जो है 70,000 दरवाजे रहेंगे, हाँ 70,000 कमरे रहेंगे, हर कमरे के अंदर 70,000 हुरे रहेंगे बोलते। ये सिर्फ मोटी मोटी भाषा में बोलने की बात है, लेकिन तुम्हें जितना ज्यादा पड़ेगी उतना ज्यादा सवाब है ना। तो कसरत से इन सभी चीजों को करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला के फजल से तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज थी कि बाबा रमजान के अंदर कौन लोग रोजा छोड़ सकते। पिछले जुमा में वो बात पूरी नहीं हुई थी, तो आज अपन पूरी करेंगे कि रोजा कौन छोड़ सकते हो, कौन से 5 लोगों को जो है अल्लाह ताला क्या बोले तुम्हें रोजा छोड़ सकते, और बाद में रमजान के बाद भी तुम्हें क्या कर सकते, नफिल रोजे को वो रोजे पूरे कर सकते, या फिर जो रोजेदार है उनको सदका, उनको खाना खिला को भी तुम अपने रोजों को जो कवर कर सकते। तो 5 लोग ऐसे। पहला तो वो जो औरत पेट से है उसे अल्लाह ताला क्या बोले रोजा मत रहो बोले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करेले कि जो औरत पेट से है उसे रोजा जो है फर्ज नहीं है, उन्हें बाद में भी जब उसकी पूरी हालत खत्म होगी, जब विलादत होगी, जो भी बच्चा वगैरह होगा, जब उसे सब होने के बाद जो है ना नफिल रोजे रह सकती है, या फिर रोजेदारों को ना खाना खिला को अपना कफारा पूरा कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा कौन, वो औरत जिसे दूध पिलाने का बच्चे हो, वो दाई भी रह सकती या फिर खुद का भी बच्चा रह सकते, तो उनको भी जो है क्या बोली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोजा छोड़ सकते। तुम्हें जो है बाद में तुम्हारे बच्चे का दूध का वो खत्म होने के बाद तुम्हें क्या कर सकते, नफिल रोजेरों को तुम्हारे रोजे पूरे कर सकते, या फिर क्या कर सकते, रोजेदारों को तुम खाना खिला सकते। फिर तीसरा कौन, जो औरत को मासिक पारी चालू है, मतलब 5, 6 दिन 7 दिन का जो भी पीरियड होता वो टाइम को भी जो है अल्लाह ताला उनको क्या बोलेगा रोजा तुम ना माफ है, तुम्हें नफिल रोजेरों को रोजे पूरे कर सकते, या फिर क्या कर सकते किसी रोजेदार को खाना खिला सकते। फिर उसके बाद चौथा कौन, जिसे बहुत ज्यादा बीमारी है, जो ने चल फिर नहीं सकता, हलजुल नहीं सकता, जिसे गोला दवाई चालू हुई, या फिर जो रोजा बहुत ज्यादा कमजोर है उन शरीर से कि बाबा उसे रोजा रह नहीं सकता, शरीर उसे चक्कर आती, बीपी शुगर है, गोला चालू है उसे, तो उसे भी क्या बोले अल्लाह रोजा उसे फर्ज नहीं है, उन्हें बाद में रोजे रह सकता, जब उसकी बीमारी खत्म होगी तब उन्हें रोजा नफिल रोजेदारों को पूरे कर सकता है, या फिर रोजेदारों को उन्हें खाना खिला सकता। फिर उसके बाद आखिरी जो है, जो इंसान सफर में होते, सफर के दरमियान बाबा उन्हें रोजा छोड़ सकता, क्योंकि उसे सफर में तकलीफ नहीं होना। अपना इस्लाम धर्म जो है ना ये मुकम्मल धर्म है पूरी तरीके से, इसमें जो है ना किसी भी इंसान के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा अल्लाह ताला। तुमने अगर कोई परेशानी रहेंगी तो तुम्हें वो छोड़ सकते, तुम बाद में तुम्हारी परेशानी खत्म होने के बाद तुम्हें वो काम पूरा कर सकते। रमजान के ये इस्लाम के अंदर जो है दौर जबरदस्ती नहीं है। लोग क्या समझते हैं इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा दौर जबरदस्ती है, रहना को तो रहना, अल्लाह ताला वैसा नहीं बोले। अल्लाह ताला हर चीज के अंदर जो है सब खोल खोल को बता, कुरान शरीफ के अंदर सूरह बकरा के अंदर जो है ना अल्लाह ताला सब खोल खोल को बता कि रोजा कौन से इंसान के ऊपर फर्ज है, कौन सा इंसान रोजा छोड़ सकता, रोजे के अंदर कौन कौन से चीजें नहीं करना, रोजे के अंदर कौन कौन से चीजें करना नहीं करना, सब कुरान शरीफ के अंदर है। अल्लाह ताला सब चीजें खोल खोल को बता, सिर्फ अपने को खोल को पढ़ने का। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या है बाबा कि रमजान के अंदर कौन सी चीजों से बचना, रमजान मुबारक के अंदर कौन सी चीजों से बचना। मतलब अभी बोलते ना सब लोगों का अलग अलग रहता है, कुछ लोग बोलते पेपर है तो रोजा छोड़ सकते, हाँ कुछ लोग बोलते अरे खेता में कामा करने की मुझे मैं रोजा छोड़ रहा, घर के कामच नहीं होते मैं रोजा छोड़ रहा। तो ये सब बातें झूठ है। फक्त 5 लोग क्या है, मैं जो 5 लोगों के बारे में बोले 38 लोगों को अल्लाह ताला क्या बोले रोजा माफ है बोले, उन्होंने बाद में नफिल रोजेदारों को या फिर रोजेदारों को खाना खिला को अपना रोजे का कफारा पूरा कर सकते। फिर अभी रमजान में कौन सी चीजों से बचे, रमजान में जो है हराम खाने से बचे। अभी हराम खाना मतलब क्या, जुए से जो पैसा मिलता अपने को, सट्टेबाजी से जो पैसा मिलता, उससे जो भी खाना अपन लाते, वो खाना जो अपन खाते उसका गुना बहुत ज्यादा है, तो वैसे खाने से बचे। या फिर दूसरा भी आदमी अपने को लाखों दे रहा तो अपन वो खाने की तहकीक करे कि वो खाना हराम है कि हलाल है कि नहीं। रोजेदारों को कुछ लोग देते, आस पड़ोस के लोग देते, तो अपने को वो अपन तहकीक करना कि बाबा और जो अपने को दे रहा, जो अपने को रोजेदारों को अपने को रोजा छोड़ने का आदमी खाना दे रहा, वो खाना सच्ची में हलाल माल से उन्हें कमा को लाखों दे रहा या फिर हराम माल से कमा को लाखों दे रहा। अगर उन्हें हराम तरीके से कमा को अगर वो खाना लाखों दिया होगा अपने को, और अपन वो हराम माल से अगर रोजा छोड़े तो अपने को गुनाह है। क्या है गुनाह कि बाबा 40 दिन तक अपनी कोई भी इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करने वाला, तुम्हें जानबूझ को खो या फिर अनजाने में खो। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोलेगा, हर बालिग मुस्लिम मर्द और औरत को
हर बालिग मुस्लिम मर्द और औरत को जो है हलाल और हराम की पहचान रहना जायज है। क्या रहना? इत्तदा तो उसे मालूमात रहना कि वो क्या हलाल है और क्या हराम है। जो बालिग मुसलमान मर्द और औरत को हलाल और हराम का मालूम है तो उसे दीन के बारे में क्या मालूमात रहने वाली है कि नहीं? तो सबसे पहला बेसिक क्या है? हलाल और हराम के बीच में तुमना फर्क मालूम रहना। तो हराम खाने से बचो। रमजान में सबसे पहला क्या है? पूरा रमजान का महीना तुम्हारा वेस्ट जा सकता है। अगर तुम्हें एक भी निवाला अगर तुम्हें हराम का खाएंगे तो पूरा रमजान क्या हुआ? तुम्हारा वेस्ट हुआ। तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं होने वाली और तुम्हारा रमजान का महीना भी क्या होने वाला? वेस्ट होने वाला। फिर उसके साथ साथ क्या करना? जानबूझ को जो है उल्टी वगैरह करने से बचना। गलती से अगर उल्टी भी अच्छी अपन क्या करती, कभी कभी मुंह में उंगलियां डाल को वजू करते टाइम को है कि नहीं पित्त पड़ाने की कोशिश करते, तो जानबूझ को पित्त पड़ाने की या फिर उल्टी करने की कोशिश ना करे, उससे जो है रोजा टूटता। अगर अपने आप अगर हुई होंगी उल्टी तो चलते। तो ये दो चीजों से बचे। उसके साथ साथ बाकी के जो गुस्सा नहीं होना रोजे के इसमें, फिर उसके साथ गालियां नहीं देना रोजे के इसमें, इससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन कोशिश करना जितना ज्यादा हो सकता है उतना सबर करने की कोशिश करना। रोजा जो है रमजान का महीना जो है सबर का महीना है। रमजान के महीने में जितना कम हो सके उतना गुस्सा कम होने की कोशिश करना, गालियां नहीं देना, मारपीट नहीं करना, फिर उसके साथ साथ झगड़े नहीं करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमाए नहीं, अगर तुम्हारे सामने से अगर कौन जंग के वास्ते भी आते रहेगा तो ये बोलो, झगड़े करने के वास्ते भी आते रहेगा तो बोलो बाबा मैं रोजा हूं, मैं रोजे में तेरे साथ जंग नहीं कर सकता, मैं रोजे में तेरे साथ बातें नहीं कर सकता, रोजे में तेरे साथ झगड़े नहीं कर सकता। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जो इंसान ये एक महीने में अगर तकवा करेगा, जो इंसान ये एक महीने में अगर सबर करेगा तो उन्हें बाकी के 11 महीने में उन्हें सबर कर सकता। तो तुम्हें जितना ज्यादा हो सकता है उतना कोशिश करो कि बाबा झगड़े नहीं करने की, गालियां नहीं देने की, गुस्सा नहीं होने की। ये भी बात मुझे मालूम नहीं थी, ये भी बात मैं आज पढ़े अल्लाह ताला की फजल से। अगर इससे पहले अगर मैं करे फिरूंगा तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे, आप लोगों को भी माफ करे। उसके साथ साथ जो है हम बिस्तरी करने से बचे। अगर अपनी बीवियों के पास अपन जाएंगे रोजे की हालत में तो भी क्या है, रोजा टूटता बोलते। कुरान शरीफ के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाए नहीं, पिछली जो कौम थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों से पहले के जो कौम थे, बाकी के जो कौम थे उनको जो है रोजे की हालत में अपनी बीवियों के पास जाना मना था। लेकिन उनको एक स्पेसिफिक टाइमिंग बोला था अल्लाह, मगरिब और ईशा के बीच में जाने का। अगर ईशा के बाद अगर तुम्हें जाएंगे, ईशा और फजर के बीच में अगर जाएंगे, सहरी के बीच में, तो तुमना गुनाह है, तो तुमना क्या है, गुनाह है। तो ये अल्लाह ताला क्या बोले रहा है, ये सभी चीजों से बचो कर को बोले रहा है। रोजे की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले कि इन चीजों से बचने की कोशिश करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आसानी भी फरमाया है रोजे के अंदर, तो आसानी किसी फरमाया है। तो अभी मैं क्या बोला, हम बिस्तरी के बारे में अल्लाह ताला आसानी फरमाया। सूरह बकरा के अंदर एक आयत उतारा है अल्लाह ताला। ये आयत उतारने से पहला जो है गुनाह था, रोजे की हालत में करना अभी भी गुनाह है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइमिंग था, मगरिब और ईशा के बीच में का टाइमिंग था अपनी बीवियों के पास जाने का। अगर उसके बाद अगर तुम्हें जाएंगे तो तुमना गुनाह था। तो एक बार क्या हुआ कि अपने खलीफा, पहले दूसरे खलीफा उमर बिन फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके अच्छी गुनाह हुआ, ये गुनाह हुआ, उनकी बीवी के पास उन्होंने गए तो उनको पछतावा हुआ इस बात का कि यार अपने अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोली कि रोजे और ये टाइमिंग के बाद अगर अपन देंगे तो अपने को गुनाह है। तो फिर उन्होंने पूरा मसला जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा मुझे पछतावा हुआ, मेरे अच्छी गुनाह हुआ, मैं ईशा के बाद जो है मेरे अच्छी गुनाह हुआ करके उन्होंने बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला क्या करे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ से जो है वही उतरा कि हमने जो है रोजे की हालत में अपनी बीवियों के पास तुम जब जा रहे तो उसे हमने हराम फरमाया है, लेकिन जब तुम रोजा छोड़ोगे तो उसके बाद जो है तुम जा सकते, तुम्हें हमने हलाल फरमा दिया है, वो वक्त तुम्हें क्या कर सकते, तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते। तो अल्लाह ताला क्या करे, ये क्या करे, उनको एक छूट दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को। पहले की उम्मतियों को छूट नहीं थी, उनको मगरिब और ईशा के बीच में का वक्त था अपने बीवियों के पास जाने का। लेकिन बाद में जब ये आयत उतरी, अल्लाह ताला आयत उतारा, वह मसला देखो, अल्लाह ताला क्या करे, आयत उतारा और आयत के अंदर क्या लिखे था कि तुम रोजे की हालत में अपने बीवियों के पास मत जाओ, लेकिन जब तुम रोजे की हालत में नहीं होगे, यानी जो रात का वक्त होगा, तब तुम अपने बीवियों के पास जा सकते। तो अल्लाह ताला क्या करे, अपने को एक आसानी फरमाया। तो अपन अल्लाह ताला क्या करना है, शुक्र अदा करना इस बारे में। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला क्या बोला, रोजे की हालत में जो है, रोजे की हालत में और क्या है, जो रोजेदार की जो मुंह की खुशबू रहती, मुंह की जो बदबू आती रहती रोजेदार की, अल्लाह ताला जो है उसे कयामत के दिन मुश्क के मुताबिक जो है उसे वो अजर देने वाला है बोलते। यानी जो रोजेदार रहेगा कयामत के दिन जब उन्हें अपने कब्र से उठेगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके मुंह में से जो है मुश्क से भी अच्छी खुशबू निकालेगा बोलते। तो लोग उसे पहचानेंगे बोलते कयामत के दिन हशर के मैदान में
वो एक जमात रहेंगी बोलते अलग रोजेदार की, कि उनके मुंह में से मुश्क से भी बेहतर खुशबू आती रहेंगी बोलते। तो वो लोगों को पहचानेंगे बोलते बाबा इन्हें जिंदा रहे तक रोजेदार था। क्या कैसा पहचानेंगे? उसके मुंह में से जो है मुश्क जैसी खुशबू आती रहेंगी, कहते उससे भी बेहतर खुशबू आती रहेंगी बोलते। तो अल्लाह ताला ये एक अपने को फजीलत दिया। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला और क्या फजीलत दिया कि जो रोजेदार रहती है उनके वास्ते समुद्र की मछलियां तक क्या करते हैं? दुआ करते बोलते कि अल्लाह ताला इसकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह जो रोजेदार है अल्लाह उसके हर दुआ को कबूल कर, या अल्लाह जो रोजेदार है उनको आसानी फरमा, रोजे में आसानी फरमा। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि बाबा पानी की मछलियां तक अपने वास्ते दुआ कर रहे अगर अपन रोजा रहते रहेंगे तो। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला और एक फजीलत क्या दिया कि बाबा रमजान में तुम्हें अगर, मैं पहला बोला कि बाबा सुन्नत और नफिल अगर नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हें क्या है? फर्ज नमाज पढ़ने का सवाब मिलने वाला है। और अगर तुम्हें फर्ज नमाज पढ़ेंगे, फर्ज अगर कोई काम करेंगे तो तुम्हें 70 गुना ज्यादा सवाब मिलने वाला है। तो ये पहले के कौमों को ये फजीलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला क्या करे अपने कौम के लोगों को ये एक फजीलत एडिशनल दे कि बाबा अपन पुराने कौमों के साथ अपन कम्पीट कर सके। क्यों? उनके जो इबादतें थे वो बहुत ज्यादा थे, वो एहतिकाफ में बैठते तो भी 300-300 साल 400-400 साल तक एहतिकाफ में बैठते थे बोलते वो लोग। क्या 300-300 साल 400-400 साल तक एहतिकाफ में बैठते थे बोलते। अपन 32 साल बैठ सकते कि अपनी उम्र कितनी है? 60 साल 70 साल, और उसमें से अपन टाइम कितना डालते अल्लाह ताला की इबादत में? 10 साल भी अपन गिन चुन को अल्लाह ताला की इबादत में नहीं डालते। तो इसी के असर अल्लाह ताला क्या करे? रमजान का महीना अपने को दिया, और रमजान के महीने के अंदर 1 का 70 देने का अपने को क्या करे? वादा करे। और उसके साथ साथ आखिरी फजीलत क्या दे, आखिरी आसानी क्या दे अल्लाह ताला कि रमजान महीने के अंदर एक ऐसी रात दे अपने को जिसमें अपन अगर इबादत करेंगे, अगर जागेंगे तो अपने को हजारों महीने अल्लाह ताला के रास्ते में जागने का, अल्लाह ताला के रास्ते में इबादत करने का सवाब मिलने वाला। 1000 महीने मतलब कमोबेश 80 साल, 1000 महीने मतलब कमोबेश 80 साल इबादत करने का सवाब मिलने वाला तुमने। अगर तुम्हें पूरी जिंदगी में जिनको एक 10 भी अगर तुम्हें शबे कद्र मिले, जिनको अगर 10 भी शबे कद्र अगर तुमने अल्लाह ताला की फजल से मिले, तो फिर सोचो कितने गया? 800 साल अल्लाह ताला के राह में इबादत करने का सवाब मिला, वो भी बिना रुके मुसलसल इबादत करने का सवाब मिला। कितनी बड़ी फजीलत है। और इसके असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि जितना ज्यादा हो सकते उतना तुम क्या करो? आखिरी अशरा, जो आखिरी के 10 दिन रहते रमजान के, उसमें एहतिकाफ, कसरत से एहतिकाफ करने की कोशिश करो, कसरत से एहतिकाफ में बैठने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे हाथ से जो है ये इतनी बेहतरीन रात जो है ना छूटे, ताकि तुमना जो है शबे कद्र की रात आसानी से मिले। भले ही तुम 100 को भी रहे, तुमना मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 में से कौन सी भी रात हो सकती शबे कद्र की। अगर तुम्हें 100 को भी रहे मस्जिद में एहतिकाफ की नियत कर को, लेकिन शबे कद्र की रात गई तुमना मालूम भी नहीं पड़ा, फिर भी तुमना शबे कद्र की रात जो है अल्लाह ताला के राह में गुजारने का सवाब मिलने वाला। उसका चलो क्या बोले? कसरत से जो है आखिरी के 10 दिन जो है एहतिकाफ करने की कोशिश करो। अगर एहतिकाफ भी नहीं हुआ तो भी तुम्हें क्या करो? मस्जिद में आकर बैठने की कोशिश करो, ये 5 रातें तो बैठने की कोशिश करो। मस्जिद में आने का, एहतिकाफ की नियत करने का, 5 रातों को हुआ काम। 100 को भी रहे तो अपने क्या मिलने वाला? सवाब मिलने वाला। किसका? शबे कद्र रात का। अल्लाह ताला क्या करे? ये 5 आसानियां, 5 फजीलत अपने को दिया रमजान मुबारक के अंदर। फिर उसके साथ साथ आखिरी बात करता, अभी वक्त का भी तकादा वाला, अल्लाह ताला का मकसद क्या है बाबा? ये रमजान, हर चीज के पीछे एक मकसद है क्या नहीं? नमाज के पीछे मकसद क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमाया? नमाज पे एक वक्त पढ़ो ताकि जो है तुम्हें अल्लाह ताला से मांगने का जरिया मिले, तुम मगफिरत की दुआ कर सको अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला से मांग सको तुम, है क्या नहीं? नमाज उसके वास्ते दिया अल्लाह ताला। ज़कात के एक वास्ते दिया ताकि तुम्हारी जो इनकम है वो तुम क्या कर सको? गरीबों में तकसीम कर सको, है क्या नहीं? अल्लाह ताला से हिसाब से बच सको, तुम्हारे माल का जो हिसाब है उससे तुम बच सको, ताकि तुम जब ज़कात देते तो क्या होता है? वो हलाल होता, तुम्हारी जो रोजी होती वो हलाल होती, और अल्लाह ताला के फजल से वो तुम रोजी तो तुम्हारा जो पैसा है, जो तुम्हारा अड़का है, जो सुनना है, वो तुम इजीली इस्तेमाल कर सकते। हाँ, फिर उसके साथ साथ रमजान के पीछे भी एक अल्लाह ताला मकसद बताया कि वो रमजान का महीना जो है हमने इसलिए अता फरमाया है तुम्हारे अंदर जो है तकवा पैदा हो, सब्र करने की जो है तुम्हारे अंदर एक तौफीक पैदा हो, है ना? रमजान महीने में इंसान क्या करता? बहुत सारे गुनाहों से बचता रमजान महीने में, है कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला एक फजीलत क्या दिया रमजान के महीने में? अल्लाह ताला सारे सरकश शयातीनों को क्या करता? कैद करता। इसलिए जो है गैर रमजान में जो अपन गुनाह करते हैं वो रमजान के महीने में अपन गुनाह नहीं करते। शराबी शराब छोड़ता, जुआरी जुआ छोड़ता, बस 5 मिनट शराबी शराब छोड़ता, जुआरी जुआ छोड़ता, है क्या नहीं? हाँ, नमाज नहीं पढ़ने वाला आदमी भी नमाज पढ़ने चालू करता, है क्या नहीं? तो अल्लाह ताला का मकसद क्या है? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो,
हाँ, अल्लाह ताला के रास्ते में तुम सब्र कर सको, अल्लाह ताला के वास्ते तुम भूखे प्यासे रह सको, हाँ, तुम नमाज पढ़ने की तुम्हें आदत लगे, हाँ, मस्जिद में वक्त गुजारने की आदत लगे, हाँ, गुस्सा कम हो तुम्हारे हाथ से, झगड़े करने की तुम्हारी जो आदत है वो कम हो, गुस्सा करने की आदत कम हो। भूखा रहा ना आदमी, गुस्सा नहीं करता, झगड़े नहीं करता, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कम होता उसका, है कि नहीं, थोड़ा नरम पड़ने जाता। तो अल्लाह ताला का मकसद क्या है कि तुम अल्लाह ताला का नहीं दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला का नहीं गिड़गिड़ाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआ है जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है कि जो इंसान को रमजान का महीना नसीब हुआ और उसकी मगफिरत नहीं हुई वो आदमी हलाक हो। तो मकसद क्या है रमजान महीने का कि तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना सवाब करो, अल्लाह ताला की करे जन्नत की तलब करो, जहन्नुम से जो है पनाह मांगो और जो है जहन्नुम के आग से पनाह मांगो और मगफिरत की दुआ करो। गिड़गिड़ो अल्लाह ताला के सामने, रातों में गिड़गिड़ो, सुबह में गिड़गिड़ो। अल्लाह ताला जो है एक दुआ कबूल करने का जो है तुम ना क्या बोले ना, एक फजीलत दिया है कि रमजान के महीने में जो भी इंसान हर एक रात में जो है हम एक दुआ कबूल करेंगे, उसकी जो भी जायज दुआ रहेंगी। तो तुम्हें अल्लाह ताला के पास मगफिरत की दुआ करो, जन्नत की तलब करो और जहन्नुम से बचने की दुआ करो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम सभी लोगों को जो है उसके सामने गिड़गिड़ाने की तौफीक नसीब अता फरमाए, मगफिरत की दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, रोजे जो है मुकम्मल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा सवाब करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े जल्दी जल्दी सुन्नत पढ़ो भाई, और जल्दी जल्दी मास्क लगो जो मास्क नहीं लगे भाई।